यस मैम आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। सेशन का आगाज करते हैं। आज के सेमिनार का ऑनलाइन सेमिनार का आगाज करने से पहले जो है सबसे पहले तिलावत कुरान पाक से स्टार्ट लेंगे और तिलावत कुरान पाक के लिए मैं मिस्टर अब्दुल समद को पास करूंगी कि हम तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह मिस्टर समद। Dear valuable participants and researchers, Assalamu alaikum. This is Afshin Tariq working as an assistant director at Pastic Subcenter Karachi. As a coordinator, I am welcoming to all of you and our resource person, Dr. Sayyida Sadaf Akbar from Hashmani Group of Hospitals for today's online seminar on food safety and hygiene practices on the occasion of the World Food Day. I am starting with the introduction. Of Pakistan Scientific and Technological Information Center, PASTIC, functioning as subsidiary organization of Pakistan Science Foundation under Ministry of Science and Technology. PASTIC is the premier organization in the field of S&T information and is serving thousands of researchers and other professionals through its specialized information services. PASTIC National Center, having its headquarters in the premises of Quaid-e-Azam University campus, Islamabad, with a strong network of 6 sub-centers across Pakistan, located at Karachi, Faisalabad, Lahore, Peshawar, Muzaffarabad, and Quetta. Presently, PASTIC provides broad spectrum of services such as PASTIC supply, full text research papers, S&T documents, bibliographic information services, patent information services, PASTIC setup, technology and information support services. PASTIC publish Pakistan Journal of Computer and Information System. Soft copies are available online. PASTIC annually publish Pakistan Science Abstract in 10 disciplines, collect abstracts from indigenous S&T Pakistani journals. PASTIC developed 24 new online national indigenous S&T databases such as National Science Search Engine, Scientist Directory, R&D Project Directory, COVID S&T Information Portal, SARC SME Portal, and so many others. PASTIC have National Science Reference Library, develop Union Catalog, PARCAT. PASTIC promoting university industry collaboration for research-based industrial development by organizing technology exhibitions and seminars. PASTIC developed directory of scientific periodicals comprising databases, periodicals, journals. PASTIC have a well-equipped computer training lab for organizing workshop, trainings, seminars like EndNote, data mining, SPSS, MATLAB, plagiarism, POHA, and so many others for young researchers, library professionals, and entrepreneurs. PASTIC recently signed MOU with Higher Education Commission and Pakistan Innovation and Testing Center to promote research culture. For further information, you can visit our website www.pastic.gov.uk. Now I would like to introduce our resource person of today's informative and productive session, Dr. Sayyida Sadaf Akbar, holding a PhD degree in microbiology, working as a microbiologist and infection control manager from Hashmani Group of Hospitals. She wrote a book about blastocytosis
She has more than 11 research papers published in national and international journals. I would like to request Dr. Sadaf to conduct this session. Dr. Sadaf, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि मिस अफशीन ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, my name is Dr. Saida Sadaf Akbar and I am working at Harshmanis Group of Hospitals. First of all, I would like to say thanks to PASTEC के माशाल्लाह से हम लोग जो है डिफरेंट मौज़ूआत पर अपने मुख्तलिफ जैसे कि डिफरेंट रिसर्च टॉपिक्स के हवाले से, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, प्लेजरिज्म के हवाले से हम लोग अभी तक अपने जो है डिफरेंट वेबिनार्स कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड सेफ्टी एंड फूड हाइजीन के हवाले से, क्योंकि ये 16 नवंबर जो आज का ये जो डे होता है 16 अक्टूबर का, इसमें हम लोग जो है ये वर्ल्ड हम फूड सेफ्टी के बारे में लोगों को जो है अवेयरनेस दी जाती है, उनको बताया जाता है कि अगर वो फूड हाइजीन और फूड सेफ्टी इसमें क्या एक तो मेन डिफरेंस क्या होता है और फिर किस तरीके से उसको हमें जो है कंट्रोल करना होता है। अफशीन, may I have to write our screen share? Yes. मैंने आपको co-host कर दिया है। Sure, yes. Now you people can see my screen. Okay, good. Our today topic is food hygiene and food safety. फूड हाइजीन प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें हमें जो है इसको फॉलो करनी है, ठीक है। अच्छा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द फूड हाइजीन। फूड हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो फूड हाइजीन से मुराद क्या होती है? हम जैसे अपनी पर्सनल हाइजीन के हवाले से बात करते हैं, जब हम अपने एनवायरमेंटल हाइजीनिक मैनर्स के लिए बात करते हैं, तो फूड हाइजीनिक में भी वही तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि जो फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे फूड हम लिक्विड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चाहे किसी भी टाइप का फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फूड को जो है क्लीन होना चाहिए। क्लीन इस सेंस में कि उसमें कोई आपके ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की जो है की कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसे जो है आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऐसे हैजार्डस मटेरियल्स नहीं होने चाहिए जो हमारी सेहत को आगे जाकर जो है हमारे लिए हैजार्डस साबित हो। तो ये एक जो है फूड हाइजीन का जो है मकसद ये होता है। अच्छा, फूड सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। सबसे मेन चीज ये होती है कि फूड सेफ्टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। हाउ पीपल मेक फूड अनसेफ। ऐसे कौन कौन देखिए, जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो हमें ये चीज भी जानना बहुत जरूरी होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे फूड को अनसेफ बना रही होती हैं, या हम अपने फूड को जो है खुद ही अनसेफ कर रहे होते हैं, या उनको हम एक तरीके से जो है कंटेमिनेटेड वे में लेकर जा रहे होते हैं। तो हाउ पीपल मेक ट्रांसफरिंग पैथोजेंस फ्रॉम योर बॉडी टू फूड, ठीक है ना, कि अगर जैसे हमारे पास कोई ऐसी अपने फ्रिज के टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हमें जो हम अगर हम उनको पूरे महीने भी अगर हम उनको रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो वो हमारे लिए जो है आगे जाकर किसी भी हैजार्डस का जो है बाइस नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हम उनके टेम्परेचर को जो है चेंज कर दें, अगर जो फूड या जैसे कि मीट है, मीट अगर हमें जो है उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे रखना है, लेकिन अगर हम उसको बार बार थो फ्रीज करते रहेंगे तो क्या होगा, हम उसका जो है टेम्परेचर बार बार चेंज कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद इसमें जो है इवेंचुअली आपके जो है बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर जो फूड हमारे फ्रिज टेम्परेचर पर रखने वाले होते हैं, जैसे ब्रेड है या कोई इस तरह की जो है चीज़ें, अगर हम वो बहुत 1-2 दिन तक भी अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर रख रहे होते हैं तो उसमें जो है फंगल ग्रोथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो फूड हमें जिस टेम्परेचर को जो फूड रिक्वायर्ड होता है, हमें उसको वही टेम्परेचर प्रोवाइड करना चाहिए, अदरवाइज उसमें जो है हम जो है एक तरीके से जो है कंटेमिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। लेटिंग फूड स्टे टू लॉन्ग एट टेम्परेचर्स दैट आर गुड फॉर पैथोजन ग्रोथ, ठीक है ना। अगर हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहाँ पर पैथोजन की ग्रोथ होगी तो फिर वो फूड भी हम अपने लिए खुद एक तरीके से उसको अनसेफ करते हैं। हाउ पीपल मेक इसमें एक और चीज ये है, पुअर क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की सरफेसेस होती हैं, ठीक है, चाहे वो हमारी किचन काउंटर हो, चाहे वो हमारे जो है किसी भी रेस्टोरेंट का जो है काउंटर हो,
चाहे वो हमारी जो है किसी भी फैक्ट्री में अगर हम कोई भी फूड प्रोसेस कर रहे हैं, अगर उसका जो है हमारे पास काउंटर हो। अब जैसे पिक्चर में आपको एक बैलेंस मशीन नजर आ रही है, अगर कोई इस तरीके की जो है वे मशीन आपकी जो है वहां पर, अब देखिए इसमें जो है डिफरेंट टाइप के जो है कुछ कंटेमिनेशन लगी हुई है। तो ये क्या है, ये भी आपके फूड को जो है एक तरीके से जो है कंटेमिनेटेड कर रही होती है, कि जो है डिफरेंट टाइप के जो पैथोजेंस होते हैं उसको आपके फूड में ट्रांसफर कर रही होती है। अच्छा, योर रोल इन कीपिंग फूड सेफ, कंट्रोल द टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ फूड। जो हमारे फूड एंड टाइम का जो है टेम्परेचर, एक टाइम और टेम्परेचर, उसको हमें जो है बेसिकली कंट्रोल करना होता है। डोंट लेट फूड स्टे टू लॉन्ग एट टेम्परेचर्स दैट आर गुड फॉर पैथोजेंस ग्रोथ। ठीक है ना, कि हम अपने फूड को अभी तक तो हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने फूड को जो है कंटेमिनेट कर रहे हैं। अब हम किस तरीके से अपने फूड को जो है सेव कर सकते हैं। एक तो उसका जो है टाइम एंड टेम्परेचर को जो है कंट्रोल करके कि कितनी देर तक हमें उसको जो टेम्परेचर पे रखना है, और कितनी देर बाद हमें उसको जो है अपने उसका जो एक कहना चाहिए कि फेवरेबल टेम्परेचर है उस पर उसको जो है स्टोर करना है। प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम जो है जैसे अब आप इस पिक्चर में देखें कि इसमें वेजिटेबल है, फ्रूट है, और फिर साथ में आपके जो है एक मीट है। ठीक है ना, तो अगर हम उसको जो है इसको इस एक ही ट्रे में, क्योंकि देखें जब हम किचन में करते हैं या हम कहीं पे अगर हम जो है प्रोफेशनल लेवल पर भी जो है अगर हम किसी फूड डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को हैंडल कर रहे हैं, तो कटिंग बोर्ड भी जो है आपको हर फूड का एक अलग अलग होता है। अब मीट का आपको जो है कटिंग बोर्ड अलग होना चाहिए, फ्रूट्स के लिए आपके लिए कटिंग बोर्ड अलग होना चाहिए, देन वेजिटेबल्स के लिए आपके लिए जो है कटिंग बोर्ड अलग होना चाहिए। क्यों? ताकि इसमें अगर देखिए, क्योंकि जो हमारे पास कटिंग बोर्ड्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर भी जो है इन तमाम चीजों की जो है कोई अगर कंटेमिनेशन है, कोई अगर ऐसी अगर हम किसी कटिंग बोर्ड पे जो है मीट को कट कर रहे हैं, तो उसमें जो उसके ब्लड के अगर उसमें उसके ब्लड में कोई ऐसा पैथोजन है, कोई ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे लिए जो है मुजरे सेहर साबित हो सकता है, तो वो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी एडअप हो सकता है। इसीलिए हमेशा हर चीज को जो है कट करने के लिए आपका मीट का एक अलग कटिंग बोर्ड होना चाहिए, वेजिटेबल का अलग, फ्रूट्स का अलग, ताकि जो है आपके जो है जितने भी इसमें वो है पैथोजेंस एक से दूसरे में ट्रांसफर ना हो। डोंट ट्रांसफर पैथोजेंस फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। सही है। अच्छा, हाउ इन क्रॉस कंटेमिनेशन बीइंग प्रिवेंटेड इन द फोटो में जो है मीट रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें आप ये देखेंगे किस तरीके से जो है इन्होंने इसको मैंने नीचे मीट रखने की क्या वजह है। रेडी टू ईट फूड इट इज स्टोर अबव रॉ फूड। हमेशा आपके फ्रिज में भी इसी तरह की जो है कैटेगरी होनी चाहिए, या अगर आप किसी शॉप पे या आप किसी ऐसे जगह पर वर्क करते हैं जहां पर आपको फूड को इस तरीके से स्टोर करना होता है, तो हमेशा जो आपका रेडी टू यूज फूड होता है, वो चाहे आपके मीट में हो, चाहे आपके फ्रूट्स में हो, वेजिटेबल्स में, उसको हमेशा लेयर 1 पे रखा जाता है। उसके बाद जो आपके रॉ फूड्स होते हैं, वो चाहे आपके वेजिटेबल्स हो, कोई भी सिंपल फूड हो, वो आप पर नीचे। क्योंकि अगर देखें, अगर हम रॉ फूड को ऊपर रखते हैं, तो अगर मीट में से अगर जैसे सपोज लाइट चली गई या कोई इस तरीके का मिसहैप हो गया, तो अगर मीट में से जो अगर ब्लड निकल रहा है या उसमें से अगर किसी किस्म का जो है वाटर लीक हो रहा है, तो क्या होगा, फिर जो आपके कुक फूड है उसके अंदर वो चीज जाकर फिर जो है डिफरेंट टाइप की जो है कंटेमिनेशन को प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसलिए ये एक बेसिक इसका रूल ये होता है कि रेडी टू ईट फूड इज स्टोर अबव टू रॉ फूड। क्लीन एंड सैनिटाइज सरफेसेस करेक्टली। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो थोड़े वो आ गई, आई थिंक किसी का माइक म्यूट नहीं है। मैंने कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। चलिए, थैंक यू। अच्छा, क्लीन एंड सैनिटाइज सरफेसेस करेक्टली। जो हम अपने किचन में, अपने रेस्टोरेंट्स में, अपने हम जो है प्रोफेशनल एरियाज में जहाँ पर हम कुकिंग कर रहे हैं, जहाँ पर हम फूड को स्टोर कर रहे हैं, अगर आपकी सरफेसेस करेक्टली क्लीन नहीं है, तो वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेंस की ग्रोथ हो सकती है। कीप एवरीथिंग क्लीन। जो चीज़ें हमने कुकिंग के दौरान अपनी जो है फूड प्रिपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए, उन तमाम चीज़ों को रेगुलरली क्लीन करना है। क्लीन एंड सैनिटाइज एनीथिंग दैट टच्ड फूड। ठीक है ना, वो चाहे आपकी नाइफ है, आपकी ट्रेज हैं, आपकी प्लेट्स हैं, आपका स्टोव है, तमाम चीज़ें।
अंडरस्टैंडिंग फूड एलर्जीज। अच्छा, फूड एलर्जीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बहुत सारी चीजों से लोगों को जो है फूड एलर्जी होती है। इवन के जो लोग अगर हम उस फूड को इनटेक नहीं भी कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ उस फूड को जो है कुक भी कर रहे हैं, प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो भी उन लोगों को जो है फूड से एलर्जी होती है। जैसे कि कुछ लोगों को जो है डेयरी से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को एग से, सोया से, फिश से, डिफरेंट लोग चीजों से जो है लोगों को एलर्जी हो सकती है। तो ये चीज भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कुछ लोग प्रॉन से एलर्जी होती है, किसी को डिफरेंट टाइप ऑफ नट से एलर्जी होती है, ठीक है ना। तो उसमें जो है आपको किस तरीके से जो है अगर उससे जो है प्रिवेंट करना है खुद को। प्रिवेंट क्रॉस कांटेक्ट, ठीक है ना। अगर जैसे सपोज अगर हम कोई भी चीज जो है रेडी कर रहे हैं अपने किचन में, या हम कहीं जो है किसी भी प्रोफेशनल इदारे में, तो अगर आप जैसे प्रॉन है या आपका जो फिश है या डिफरेंट टाइप के बीन्स हैं, एग्स है, ठीक है, तो उसको हम जो है जो चीजें हमें एलर्जिक नहीं करती हैं या जो चीजें हमें एलर्जिक कर रही होती हैं, उन दोनों चीजों को भी फिर एक हमें सेपरेट जोन में रखना होता है। Clean and sanitize surfaces that have come in contact with an allergen, ताकि जिन चीजों से आपको एलर्जी नहीं है उन चीजों की, और जिन चीजों से आपको एलर्जी है उन चीजों की जो है कंटेमिनेशन दूसरी चीजों में जो है एंटर ना हो, या उन चीजों में जो है उसकी मिलावट ना हो, ताकि फिर आपको जिन चीजों से एलर्जी नहीं है उन चीजों से फिर आप जो है सेफ रहें। इंस्पेक्ट फूड पैकेजिंग फॉर लीक्स और स्पिल्स दैट कैन कॉज क्रॉस कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। जितने भी हमारे फूड, अगर हम फूड कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम मिल्क शॉप में हम जब मिल्क लेकर आते हैं या वहां पर जो मिल्क के पैकेट्स बने होते हैं, तो उस चीज को हमें मेक श्योर करना होता है कि जो मिल्क के पैकेट्स हैं, या अगर हम जो है डेयरी मिल्क या हम उसका जो है कोई भी जो है कार्टन लेकर आ रहे हैं, तो उसमें किसी किस्म की जो है स्पिल या लीक्स ना हो, क्योंकि वो भी जो है आपके जो है पैथोजेंस की के लिए जो है एक एंटर होने का रास्ता बन सकता है। वॉश हैंड एंड चेंज ग्लव्स आफ्टर हैंडलिंग एलर्जेंस एंड बिफोर हैंडलिंग एलर्जन फ्री फूड, ताकि अगर आपके हाथों में इस तरह की अगर कोई कंटेमिनेशन मौजूद है, कोई ऐसी चीज मौजूद है जो आपके एलर्जन फ्री फूड में ट्रांसफर हो सकती है, तो उससे आप खुद को जो है प्रिवेंट कर सके, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंट क्रॉस कॉन्टेक्ट फ्रॉम स्पिल्ड फूड। अगर जैसे सपोज कुछ लोगों को जो है एग से एलर्जी होती है, तो उनके लिए क्या है, इमीडिएटली आइसोलेट स्पिल फूड कंटेनिंग एन एलर्जन फ्रॉम अदर फूड प्रोडक्ट्स। अगर जैसे वहां पर उनके जो है कोई स्पिल हो गया इस तरीके का कि वो उनका एग था वो जो है किसी तरीके से स्पिल हो गया, तो उसको फौरी तौर पर जो है क्लीन करें, ताकि आपका जो है वहां पर जो है सराउंडिंग एक तो क्लीन है, और फिर जो दूसरे आपके एलर्जन फ्री फूड है वो इससे जो है सेफ रहे, ठीक है। अच्छा, जब हम फूड सेफ्टी या फूड हाइजीन की बात करते हैं, हम अपने हाइजीनिक प्रैक्टिस को जो है मालूम ही है कि एक गुड पर्सनल हाइजीन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी हैंड वॉशिंग। बट कब एंड व्हेन, हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब हमें अपने हाथों को वॉश करना है, ठीक है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हाउ एंड व्हेन टू वॉश योर हैंड्स कैन, और क्यों, ये भी एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि क्यों। हाँ, वैसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में इतनी ज्यादा पोल्यूशन है, हर तरफ जो है अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के डस्ट हैं, तो फिर अगर हम जब हाथ को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कि हम अपने हाथों को जो है क्लीन रखें, क्योंकि हमारे हाथ जो है वो एक हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एंट्री होते हैं, कि अगर हम कोई भी चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो हमारे हाथों से गुजरकर हमारे मुंह तक आती है। हम उसको जब इंटेक करते हैं तो उसमें हमारे हाथों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हैंड्स कैन ट्रांसफर पैथोजेंस टू फूड। तो फूड में अगर किसी किस्म की जो है कंटेमिनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपके हाथ क्लीन नहीं है, आपके हाथों में जो है किसी किस्म की जो है डर्ट पार्टिकल्स मौजूद है, एनी टाइप ऑफ कंटेमिनेशन मौजूद है, तो वो फिर आपके फूड को भी एक तो कंटेमिनेट करेगी, और फिर आपकी बॉडी में भी जो है उस कंटेमिनेशन को एंटर कर देगी। हैंड वॉशिंग इज अ क्रिटिकल स्टेप फॉर अवॉइडिंग फूड कंटेमिनेशन। अब हाउ टू वॉश योर हैंड्स। हैंड वॉशिंग शुड टेक अबाउट 20 सेकेंड्स, ठीक है ना। जैसे हम सबको पता है कि किस तरीके से हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना होता है, ठीक है। तो वो हमें एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक अपने हाथों को जो है वॉश लाजमी करना होता है। अभी जब ये वीडियो आपकी, ये जब मेरी पीपीटी एंड हो जाएगी, फिर मैं आपको जो है वीडियो के उसमें जो है अपने एक हैंड वॉशिंग का जो है पूरा जो हमारे पास 7 उसके स्टेप्स होते हैं वो भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से हमें अपने हाथों को वॉश करना होता है प्रॉपरली अबाउट 20 सेकेंड्स, ठीक है। हाउ टू वॉश योर हैंड्स, वॉश वेट हैंड्स एंड आर्म्स, ठीक है। अप्लाई सोप, स्क्रब हैंड्स, और अगर हम स्क्रब यूज करें तो स्क्रब करें, फिर उसको जो है प्रॉपरली अपने हैंड्स को वॉश करें, ठीक है। अच्छा,
जो हमारे पास एक फूड सेफ्टी के जो लोग होते हैं, जो हमारे फूड मेकिंग में जो इनरोल लोग होते हैं, वो चाहे हमारे हाउस वाइफ्स हों, चाहे हमारे घर में काम करने वाले लोग हों, चाहे हमारे शेफ हों, चाहे किसी भी जो है रेस्टोरेंट में कहीं पे भी वर्किंग कर रहे हैं, तो आफ्टर उनको कब व्हेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कब उनको जो है अपने हैंड्स को वॉश करना लाजमी होता है। आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम, ठीक है ना, जब हम जो है अपने किसी भी जो है उसके लिए रेस्ट रूम को यूज करते हैं, उसके बाद हमें जो है अपना हैंड लाजमी करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में बताया, अगर कोई पर्सन है वो इल है, चाहे उसको जो है अगर जो टाइफाइड हुआ है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है, या कोई ऐसा शख्स है जिसको जो है वॉमिटिंग एंड डायरिया स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो अगर वो जो है वॉशरूम यूज करने के बाद अगर वो अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश नहीं कर रहा, तो उसके हाथों में जो है वो पैथोजेंस मौजूद होंगे। और ड्यूरिंग कटिंग, फिर ड्यूरिंग कुकिंग, फिर और एंड में जो है ड्यूरिंग सर्विंग, वो उसके हाथों से पैथोजेंस निकलकर जो है दूसरे शख्स की बॉडी में भी एंटर हो सकते हैं थ्रू कटिंग, मेकिंग एंड सर्विंग, ठीक है ना। आफ्टर टचिंग योर फेस, हेयर, बॉडी और क्लोथिंग, ठीक है, अगर जैसे किसी शख्स को फ्लू है, उसको जो है जैसे आजकल का हमारा जो है वेदर ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को जो नजला, खांसी, बुखार, ये सब चीजें हो रही है, तो अगर हमें फ्लू है और हमने अपनी जो है नोज को टच किया, या हमने अपने फेस को टच किया, हमने अपने हेयर्स को टच किया, या किसी भी बॉडी पार्ट को टच किया, उसके बाद हमें जो है लाजमी हैंड वॉश करने की जरूरत होती है बिफोर टच एनी फूड आइटम, बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग रॉ फूड्स लाइक मीट और पोल्ट्री, ठीक है ना। क्योंकि रॉ फूड जैसे कि मीट और पोल्ट्री की जब हम बात करते हैं, उसमें ऑलरेडी आपके पास जो है ब्लड मौजूद होते हैं, और ब्लड में हमें नहीं मालूम होता, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स में भी हमारे पास जो है डिफरेंट पैथोजेंस मौजूद हो सकते हैं। तो जब आप उसको हैंडल कर रहे हैं, और उससे पहले भी और उसके बाद में भी, ताकि आपके हाथों से भी उसमें कोई जम्प ट्रांसफर ना हो, और फिर आपके जब हाथ में अगर कोई जम्प उससे लग गया, तो वो फिर आपको आगे जाकर आप किसी चीज में जो है ट्रांसफर नहीं करें। आफ्टर टेकिंग आउट गार्बेज, ठीक है ना, जब हम अपने किचन से गार्बेज बाहर रखते हैं, या हम अपने जो है रेस्टोरेंट से जो है गार्बेज हमने अपना काउंटर क्लीन किया, हमने अपना सिंक क्लीन किया, उसके बाद जो आपने जो है उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करना लाजमी होता है। आफ्टर स्नीजिंग, ब्लोइंग योर नोज और यूजिंग अ टिश्यू, ठीक है, इन सब चीजों के बाद भी आपको अपना हैंड वॉश करना लाजमी होता है। आफ्टर हैंडलिंग केमिकल्स, अगर हम अपने किचन में या कहीं पर भी किसी भी टाइप का हम जो है केमिकल यूज कर रहे हैं, तो वो भी आपको जो है हैंड वॉश करना लाजमी होता है। क्योंकि अगर आप उसके बाद हैंड वॉश नहीं करेंगे, तो अगर उसके बाद आपने अपनी आईज को टच कर लिया, नोज को टच कर लिया, या स्किन के किसी जगह को टच कर लिया, तो एक तो आपको वहां पर स्किन एलर्जी भी हो सकती है, और फिर अगर वो केमिकल किसी और शख्स के लिए जो है मे बी एलर्जिक कंडीशन का बायस बने, तो वो भी जो है नुकसानदेह होता है। आफ्टर स्मोकिंग, यूजिंग ई सिगार्स, च्युइंग गम्स और यूजिंग टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इसके बाद भी जो आपको लाजमी हैंड वॉश करना होता है। आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, कुछ जो भी चीज हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके बाद जो है हमें लाजमी तौर पर अपने हाथों को वॉश करना लाजमी होता है, ठीक है। यूजिंग हैंड एंटीसेप्टिक्स, जैसे हम लोग आजकल बहुत ज्यादा जो है हमारे पास जो हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं वो भी यूज कर रहे होते हैं। नेवर यूज देम इंस्टेड ऑफ हैंड वॉशिंग। अगर आपके पास आप जिस जगह पर मौजूद हैं, आपके किचन है, घर है, आपकी जो है रेस्टोरेंट है, कहीं पर भी अगर आपके पास साफ पानी और साबुन अवेलेबल है, तो उस चीज का कोई भी जो है सब्स्टिट्यूट आपका नहीं मिल सकता। अगर आपके पास साफ पानी और साबुन अवेलेबल है, सोप अवेलेबल है, तो सबसे बेहतरीन चीज आपके पास है, तो उसको यूज करें। लेकिन अगर आपके पास पानी और साबुन अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन यूज हैंड सैनिटाइजर। यूज एन एंटीसेप्टिक आफ्टर वॉशिंग हैंड्स, ठीक है, वेट फॉर द एंटीसेप्टिक टू ड्राई बिफोर टचिंग फूड और इक्विपमेंट और पुटिंग ऑन ग्लव्स, ठीक है। अब जैसे हमने अपने हाथों का हैंड सैनिटाइज कर लिया, बहुत ज्यादा हमने जो हैंड सैनिटाइजर ले लिया, अब हमने उन्हीं, क्योंकि उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स होते हैं, जो भी हम हैंड सैनिटाइजर हम चाहे किसी भी ब्रांड का यूज कर रहे हैं, उसका ज्यादा इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए, हमारी सेहत के लिए जो है नुकसानदेह साबित होता है। तो उसको जो है हम ड्राई होने दें, और उसी केमिकल वाले हाथों से जो है अगर हम खाना नहीं शुरू करें, देखिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए खाना खाने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोएं, ठीक है, नॉट जो है नॉट यूज एनी हैंड सैनिटाइजर। फॉलो मैनिंग, जो आपके जो है उसमें आपके जो आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उस पर आपके जो है मैन्युफैक्चरर्स की जो डायरेक्शंस दी हुई हैं, उसको लाजमी इस्तेमाल करें, किस तरीके से उसको यूज करना है,
क्योंकि अक्सर हमारे पास हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइजर्स पे जो है मेंशन होता है कि जिनको स्किन एलर्जी होती है वो उसको इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ऐसे कुछ मैंने बताया ना कि इसमें ऐसे कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो ऑलरेडी स्किन एलर्जी वालों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। वेयर टू वॉश योर हैंड्स, ठीक है ना, यूज अ हैंड वॉश सिंक, हमें जो है सिंक इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास स्पेशली हैंड वॉश करने के लिए एक डेजिग्नेटेड सिंक मौजूद होता है, जो आपके किचन में, आपके रेस्टोरेंट में, आपकी फैक्ट्री में, जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं, आप फूड रिलेटेड आइटम्स को डील कर रहे हैं। वेयर टू वॉश योर हैंड्स, ठीक है ना। अब जैसे टू नॉट यूज हैंड वॉश सिंक फॉर अदर थिंग्स, ठीक है। अब देखें जैसे अब ये एक पिक्चर में आपको एक सिंक नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये आपका हैंड वॉश सिंक है जहां पर आप जो है एक कंटेमिनेटेड वाटर भी उसको आप जो है वो वहां पर भी जो है आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग। जो आपका हैंड वॉश का सिंक है उस पर सिर्फ आपको हैंड वॉश ही करना है, उस पर आपको किसी और किस्म की जो है कंटेमिनेशन को एड अप नहीं करना है। नेवर डम डर्टी वाटर इन देम, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप उस सिंक को जो है कंटेमिनेट कर देंगे तो आपका हैंड वॉश करना वहां पर जो है किसी भी तरीके से फिर यूजफुल नहीं होगा। नेवर प्रेप फूड इन देम, ठीक है ना, आप वहां पर जो है किसी भी किस्म का जो है फूड को जो है वो प्रोसेस नहीं करें। नेवर वॉश टूल्स और इक्विपमेंट्स इन देम, ठीक है। अच्छा, वेयर टू वॉश योर हैंड्स, अच्छा जैसे अब हमारे पास डिफरेंट जो है फैक्ट्रीज होती हैं या हमारे पास रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां पर आप उसके जहाँ पर हमारा सिंक है उस जगह को हमें एक्सेसिबल बनाना होता है। मेक श्योर हैंड वॉशिंग सिंक्स आर इजी टू गेट टू एंड नॉट ब्लॉक। अब अगर वहां हमने डिफरेंट, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, डिफरेंट हमने ब्लॉक करके उस जगह को जो है हमने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, अब अगर किसी पर्सन को हैंड वॉश करने की जो है जरूरत है तो वो वहां तक पहुंच नहीं सकेगा, ठीक है। नेवर स्टैक फूड इक्विपमेंट्स और सप्लाईज इन देम और इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। अच्छा, स्टॉकिंग द हैंड वॉशिंग सिंक, ठीक है। अ स्टॉक्ड सिंक शुड हैव हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर, ठीक है। उसमें ये कि आपके पास जो है पानी की जो है सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, लिक्विड सोप मौजूद होना चाहिए, सिंगल यूज पेपर टॉवल्स या हेयर ड्रायर मौजूद होना चाहिए। सिंगल यूज पेपर टॉवल्स, सिंगल यूज पेपर टॉवल्स क्यों होना चाहिए वहां पर, इसलिए कि अगर हम वहां पर एक परमानेंटली अगर हम एक जो टॉवल जैसे अमूमन हम लोग घरों में यूज करते हैं, अगर हम उसको वहां पर रखेंगे तो अगर मैं जैसे अगर जो है रेस्टोरेंट की बात करती है, अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट में अगर हम एक ऐसा टॉवल रख रहे हैं जो आप अपने घरों में भी अमूमन यूज करते हैं, तो जो भी वहां पर आपके पास विजिटर्स आते जाएंगे वो उसी टॉवल से जो अपने हैंड वॉश करते जाएंगे। अब जब वो अपने हैंड उसी टॉवल से वॉश कर रहे हैं तो मीन्स हम उस एक जर्म्स को दूसरे पर्सन में जो है खुद ट्रांसफर करने के जो है जिम्मेदार बन रहे हैं। इसीलिए जो है जो आपके पास रेस्टोरेंट्स होते हैं, इवन अब घरों में भी जो है सिंगल टॉवल्स का जो है एक वो आ रहा है कि हर फैमिली मेंबर के पास उसका अपना एक अलग से टॉवल होना चाहिए, ताकि बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स में भी बहुत से लोगों को जो है किसी को स्किन एलर्जी होती है, किसी को साइनस की जो का इश्यू होता है, किसी को डिफरेंट इश्यूज होते हैं। तो अगर हम लोग एक टॉवल पूरे घर वाले जब इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक तरीके से जो है क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें वहां जो है सिंगल यूज पेपर टॉवल्स यूज करने चाहिए कि आपने उनको अपना हैंड वॉश करने के बाद एक बार अपने हैंड्स को ड्राई किया, वो टॉवल आपने जो है जो आपका वो था टिश्यू पेपर है या कोई ऐसा सिंगल यूज पेपर टॉवल्स है उसको आपने बस बिन में डिस्कार्ड कर दिया, कोई और पर्सन उसको फिर इस्तेमाल नहीं करेगा। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है हैंड ड्रायर का, कि आपके पास हैंड ड्रायर मौजूद हो, आप अपने हैंड वॉश करने के बाद उस जगह को अपने जो हैंड से ड्राई कर लें, ठीक है। अच्छा, अदर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस, अब जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड च्यूइंग गम, टोबैको और ई सिगरेट्स, नेवर डू दिस थिंग्स इन द फॉलोइंग एरियाज, in food handling areas, in food storage areas, only do these things in designated areas। कि आपके पास अगर आप किसी रेस्टोरेंट में वर्क कर रहे हैं या आप कहीं पे जो है किसी फैक्ट्री में आप जो किसी भी फूड को प्रोसेस कर रहे हैं, तो जहाँ आपके जो है प्रोसेस एरियाज होते हैं, जहाँ फूड स्टोर करते हैं, वहां पर इन सब चीजों को का अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्लव्स यूज, सिंगल यूज ग्लव्स, ठीक है। सिंगल यूज ग्लव्स इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, कि आपके पास जो है आप एक ही ग्लव्स को जो है हर बार हर चीज के लिए इस्तेमाल ना करें, ठीक है। एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू वेयर सिंगल यूज ग्लव्स टू कवर एन इम्पेरेबल कवर बैंडेज और अ कट, बर्न और रैश। अगर आपके हाथों में कोई कट लग जाता है तो फौरी तौर पर उसको आपको कवर करना लाजमी होता है, ताकि उसमें से जो है पैथोजेंस बाहर के में आपका एंटर ना हो और बाहर से कोई पैथोजन आपके उस कट वाले एरिया से आपकी बॉडी में एंटर ना हो। फॉल्स फिंगरनेल्स और अनक्लीनेबल फिंगरनेल्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं होने चाहिए, ठीक है।
ताकि आपके नेल्स में भी जो है डिफरेंट टाइप्स के जर्म्स फिर की जो है फिर वो एक तरीके से वो अपना होम बना लेते हैं, ठीक है। रिंग्स अदर देन आप प्लेन रिंग और वेडिंग बैंड, ठीक है। कोई अगर आपके कोई बहुत ज्यादा जैसे जिन लोगों को रिंग्स वगैरह की आदत होती है उनको उससे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको इसमें नहीं यूज करनी चाहिए। अच्छा, रिसीविंग एंड स्टोरिंग फूड सेफली, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोलिंग टाइम एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग रिसीविंग, ठीक है। अब जैसे हम डिफरेंट अभी हम टेम्परेचर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो किन टेम्परेचर्स पर जो है हमें फूड्स को स्टोर करना होता है, दिस इज द टेम्परेचर डेंजर जोन, ठीक है। डेंजर जोन क्या है, पैथोजेंस ऑन फूड कैन ग्रो इन दिस रेंज एंड कॉज ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, ठीक है। वो फिर हमें जो है फूड बॉर्न डिजीज प्रोवाइड कर यानी कि उनसे हो सकता है, ठीक है। The temperature danger zone, food temperature must be controlled from pick up from the donor or food bank to hand off to client. अगर हम किसी शॉप से किसी भी जो है ग्रोसरी स्टोर से फूड लेकर हम अपने घर आ रहे हैं तो उस दौरान भी जो है उस फूड को आपको जो है एक ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। ऐसा ना हो कि जो है हमने सुबह हम जैसे बहुत से हमारे लोग कर रहे होते हैं कि सुबह हम जो है शॉपिंग पे निकले, हमने सबसे पहले मीट बाय किया, उसके बाद हमने मीट को अपनी गाड़ी में रखा, उसके बाद हमने पूरे शहर का राउंड किया, हमने हमें ये शॉपिंग की वो शॉपिंग की, उसके बाद हम एंड ऑफ द डे जब घर आते हैं तो वो आपका मीट जो है वो ईटेबल फॉर्म में नहीं रहता। अगर आप उस फूड को इतने देर बाद इनटेक कर रहे हैं तो वो आपका फूड जो है मुख्तलिफ पैथोजेंस उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं क्योंकि आपने उसको एक सिक्योर टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया। स्पेशली हमारे आज के जो हमारे यहाँ का जो वेदर होता है वो इतना ज्यादा उसके लिए जो है अप्रोप्रिएट नहीं होता। इंक्लूड्स टाइम फूड स्पेंड्स इन द वेयर हाउस, ऑन द ट्रक एंड एट द एजेंसी, ठीक है ना। इंस्पेक्टिंग फूड ड्यूरिंग रिसीविंग टू मेक श्योर इट इज सेफ। हम जब फूड वहां से ले रहे हैं उसके बाद हमें जो है मालूम होना चाहिए कि जहाँ से हमने फूड लिया है, अगर हम किसी ग्रोसरी शॉप से फूड ले रहे हैं तो वहां से अगर हम जैसे सपोज आइसक्रीम हमने ली है या हमने कहीं से मीट लिया तो जो चीज हमें एक फ्रीजिंग पॉइंट पर लेनी चाहिए थी वो हमें फ्रीजिंग पॉइंट पर मिल रही है, इस चीज को हमें मेक श्योर करना होता है, ठीक है। स्टोरिंग फूड सेफ्टी अभी मैंने बताया, ठीक है ना, कि आपके पास जो एक रेफ्रिजरेटर का टाइम होता है वो आपको वहां पर मौजूद होना चाहिए। अच्छा, टेम्परेचर लॉक्स, ये अमूमन हम अपने घरों में तो यूज नहीं करते लेकिन आपके जैसे ग्रोसरी शॉप्स होते हैं या जो है बेकर्स होते हैं या आप किसी फैक्ट्री में जहाँ पर फूड की जो प्रोसेसिंग होती है वहां पर आपके फ्रिज के साथ ये टेम्परेचर लॉक मौजूद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके फ्रिज में आपके जो है जहाँ पर अपने फूड आइटम्स को जो है स्टोर किया हुआ है उसमें उसके टेम्परेचर में अगर कमी या फिर ज्यादती हो रही है, वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो उस टेम्परेचर लॉक के जरिए आपको मालूम हो जाए कि जो है ये जो इसमें फूड आइटम मौजूद है इसके लिए ये अप्रोप्रिएट टेम्परेचर अवेलेबल भी है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि हमने जो है किसी भी आइटम को जो हमें फ्रीजिंग पॉइंट पर रखना है हमने उसको अपनी तरफ से जो है फ्रीजर में रखा हुआ है बट उसका जो अंदर का टेम्परेचर है वो उसके जो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपके पास आपके जो वर्कर्स हैं जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनको जो है दिन में एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है इस टेम्परेचर लॉक को फिल करना चाहिए ताकि आपके पास वहां पर उसका एक रिकॉर्ड आ जाए कि आपने जिस टेम्परेचर पे फूड को मेंटेन किया हुआ है जिस अप्रोप्रिएट। टेम्परेचर लॉक्स आर द फर्स्ट फूड सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स द डिपार्टमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है ना, ये आपका फूड आइटम्स वो होता है डॉक्यूमेंट होता है। स्टोरिंग फूड सेफली, ये भी जैसे हमारे पास अभी जैसे मैं डिफरेंट ग्रोसरी शॉप्स वाले की बात कर रही थी तो जहाँ पर हमने फूड आइटम्स को जो है सेव किया हुआ है, स्टोर फूड ओनली इन डेजिग्नेटेड फूड स्टोरेज एरियाज। ऐसा ना हो कि हमने जो है अपने एक शेल्फ पे जो है फूड्स रखे हुए हैं फिर हमने आधे शेल्फ में जो है किसी किस्म के जो है अपने हाउस में जो है क्या कहना चाहिए कि कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इस तरीके से ना एक शेल्फ में आपके पास सिर्फ फूड आइटम्स ही होने चाहिए ताकि उसमें भी क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। स्टोर फूड 6 इंच ऑफ द ग्राउंड और ऑन अ पैलेट, ठीक है ना, कि आपका जो स्टोव वो है क्या कहते हैं जो कैबिनेट है वो आपका जो है सरफेस से 6 फीट अबव होना चाहिए। क्यों? ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपके जो है फ्लोर पर किसी भी जो है इंसेक्ट का किसी भी ऐसी चीज का जो है अगर वहां पर है क्या कहना चाहिए कि आना जाना है अगर, तो वहां पर जो है आपके वो फूड आइटम में वो चीज एंटर ना हो। स्टोर फूड अवे फ्रॉम वॉल्स, ठीक है ना, दीवारों में भी अक्सर औकात बारिश के जमाने में जो है सीलन आ जाती है या कोई इस तरीके के जो है आपके वहां पर फंगस आ जाता है,
तो वो फिर आपके फूड में जो है वो चीज फिर पेनिट्रेट ना हो। स्टोर रेडी टू ईट फूड अबव अनकुक फूड, ठीक है। ये मैंने पहले बताया कि हमेशा आपका रेडी टू फूड कुक जो है वो हमेशा ऊपर होता है और आपका रॉ फूड हमेशा नीचे की तरफ होता है। स्टोरिंग क्लिनिकल प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स, ठीक है ना। अगर आप अपने वहां पर स्टोर कर रहे हैं, कीपिंग फूड सेफ, लेबल क्लीनिंग, तो जितने भी वहां पर आपके जो प्रोडक्ट्स है उसको जो है क्लीन लेबल होना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम फूड एरियाज, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के आपके पास केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास उसको आपका जो फूड एरिया है वहां से जो है दूर होना चाहिए, अवे होना चाहिए। ये हमारे साथ घरों में भी ऐसे होता है। हम लोग बहुत सारे घरों में जैसे हम लोग करते हैं, जो हमारे पास किचन में जो कैबिनेट्स होते हैं, तो हमने एक ही कैबिनेट्स में जो अक्सर औकात हम महीने का पूरा जो हमारे पास स्टॉक होता है वो हम उसमें जो है फूड आइटम्स भी हैं, आपके जो है डिफरेंट टाइप के सोप्स हैं, ब्लीच है, वो सब हम एक ही जगह पर स्टोर करते जाते हैं। तो दिस इज नॉट अ एप्रोप्रिएट वे। हमें जो है हर फूड आइटम, हर चीज के लिए हर कैटेगरी वाइज अलग अलग उसमें जो है कैबिनेट्स होने चाहिए, ताकि आप उसमें हर चीज अलग अलग स्टोर करें। उसमें जो है फिर क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होते। स्टोर इन डेजिग्नेटेड एरिया फॉर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स, ठीक है। ब्लीच, पेंट्स इट शुड नॉट बी स्टोर इन द सेम एरिया, ठीक है। अच्छा, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए होती है कि हम में से अक्सर लोग जो होते हैं वो, हम लोग जैसे मिल्क के पैकेट्स लेते हैं, या हम लोग कोई जो है प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स अगर हम ले रहे होते हैं, या अक्सर हम जो है डिफरेंट कुकिंग ऑयल है, इस तरह की चीजें खरीदते हैं, उसमें हम लोग जो है एक्सपायरी डेट और सेल बाय डेट बहुत कम लोग नोट करते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। look for it, sell by date example, sell by January 1 2012, also called pull date, ठीक है, कि कब आपके पास सेल हुआ था। look for it on refrigerated foods such as milk, yogurt, cottage cheese, eggs, ठीक है ना। इन तमाम चीजों के आपके पास वहां पर सेल डेट लिखी होती है। what it means, the store must have these foods before the code date and often donate these foods when they are close to date, ठीक है ना। तो आपको अगर जैसे इस पे डेट है 3/21/14, तो आपको ये 3/21 से ये 14/3 से पहले इसको आपको सेल आउट कर देना है, ताकि इसकी एक्सपायरी के नजदीक, क्योंकि इसमें जो है अगर आपने इसको आफ्टर एक्सपायरी अगर आप इसको सेल कर रहे हैं तो ये फिर हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। पैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये भी बहुत कम लोग नोट करते हैं। यूज बाय मैन्युफैक्चरर्स फॉर ट्रैकिंग एंड रिकॉल्स, नोट एंड एक्सपायरी डेट, ठीक है। हम उस पर एक्सपायरी डेट देखें कि कब ये मैन्युफैक्चर हुआ और ये जो है कब इसकी एक्सपायरेशन डेट है। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के कैन फूड हम यूज करते हैं, कुकीज यूज करते हैं, डिफरेंट स्पाइसेस हम यूज कर रहे होते हैं, उस पर हमें लाजमी तौर पर उसकी जो है एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। What it means, the day the food was packed, ठीक है ना, कि फूड कब पैक्ड हुआ। ऐसा ना हो कि फूड बहुत टाइम पहले पैक्ड हुआ, ठीक है। इसके बाद है बेस्ट बाय और बेस्ट इफ यूज बाय डेट। बहुत सी बॉटल्स पर आपने देखा होगा ये भी लिखा होता है बेस्ट बाय। दिस इज अ क्वालिटी डेट। क्वालिटी डेट एंड एक्सपायरी डेट में क्या फर्क होता है? एक्सपायरी डेट और क्वालिटी डेट में ये फर्क होता है कि क्वालिटी डेट की जब हम बात करते हैं, तो अगर जैसे अब ये आपके पास एक पिक्चर है, इसमें हम देख रहे हैं बेस्ट बाय अगस्त 1914, ठीक है ना। अब ये अगस्त 19 तक इसके अंदर जो एक क्या कहना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें जो आपके लिए न्यूट्रिशन है वो बेस्ट रहेगी अगस्त 19 तक। अब उसके बाद उसमें जो है आस्ता आस्ता इवेंचुअली करके आस्ता आस्ता उसमें जो है चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद जब उनकी एक्सपायरी डेट आएगी, फिर वो वहां पर जाकर वो चीज आपके लिए एक्सपायर हो जाएगी, फिर वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगी। It tells clients the date by which the product should be eaten for best flavor और quality, ठीक है ना। इसमें अगर आप यूज कर रहे हैं इस डेट तक, तो आपको उसका बेस्ट फ्लेवर मिलेगा। The product is still safe to eat past this date after the quality date, ठीक है ना। वो सेफ है, वो स्टिल सेफ है, बट उसकी जो है फ्लेवर और क्वालिटी में जो है थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। यूज बाय डेट, ठीक है ना, मैंने बताया दिस इज द लास्ट डेट रिकमेंडेड फॉर द प्रोडक्ट व्हाइल एट पीक क्वालिटी, ठीक है। तो ये आपकी पीक क्वालिटी तक जो है द प्रोडक्ट इज स्टिल सेफ टू ईट पास्ट डेट, ठीक है ना, इसलिए अच्छा।
एक्सपायरेशन डेट भी हम में से बहुत कम लोग जो है उसमें जो है किसी को हम कोई चीज बाय कर रहे हैं किसी भी शॉप से, हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है। लुक फॉर इट ऑन इट, जैसे बेबी फॉर्म, डिफरेंट टाइप के मिल्क होते हैं, मेडिसिन होती हैं, वाइटामिन हैं, बेकिंग पाउडर है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारे पास उस पर एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। इसका मतलब क्या होता है, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन्फेंट फॉर्मूला बेबी फूड जो भी हम यूज कर रहे हैं आफ्टर द एक्सपायरेशन डेट, उसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूट या सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद उसमें जो है ऐसी चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं जो फिर हमारी सेहत के लिए आगे जाकर जो है हैजार्डस साबित होती है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो मैंने बताई, इसको आप लोग को जो है हम कहीं किसी भी जो है ग्रोसरी स्टोर पे शॉपिंग करने जा रहे हैं, ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, तो ये चीजें हमें उस पर देखना लाजमी होती है। अच्छा, एक चीज होती है जो है रूटोटी, हम जब फीफो की बात करते हैं, ठीक है, फीफो मीन्स क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सपोज अगर जैसे हमने जो है एक पैक आज लिया है, ठीक है ना, किसी भी आइटम का, हम किसी भी फूड आइटम का मैंने आज एक पैकेट बाय किया, ठीक है। अब 2 दिन बाद मैंने उसका एक और पैकेट बाय कर लिया, तो जो चीज मैंने आज बाय की है सबसे पहले मैं उसको यूज करूंगी, और जो 2 दिन बाद मैंने चीज बाय की है उसको मैं बाद में यूज करूंगी। इसी तरीके से हमारे डिफरेंट शॉप जैसे होते हैं, ग्रोसरी शॉप्स होते हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, जो हमारे पास तरह के फूड आइटम्स जहाँ पे हमारे पास मिलते हैं, वहां का भी यही फॉर्मूला होना चाहिए। फॉलो द फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट मेथड इफ द फूड हैज अ यूज बाय और एक्सपायरेशन डेट, ठीक है। चेक द यूज बाय और एक्सपायरेशन डेट, हम देखेंगे कि सबसे पहले किसकी एक्सपायरी आ रही है, सबसे पहले हम उस चीज को यूज करेंगे, उसके बाद हम जो है सेकंड वन जो हमने बाद में लिया उसको फिर हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जब हम स्टोर करते हैं किसी फूड को, तो वो भी हमें इसी सीक्वेंस में ही करना होता है, ठीक है, फीफो के सीक्वेंस में। अच्छा, इसके बाद है एवेल्युएटिंग रीपैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फूड इजी, ठीक है ना। अच्छा, अब बहुत सारे फूड जैसे हम फूड बाय करने जाते हैं, बहुत सारे हम आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैन फूड भी इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, या वो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर उनके लिए जो है खाना बनाना इस तरीके की चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, तो वो लोग जो है रेडीमेड फूड आजकल इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया, जो हमारे पास प्रोसेस फूड्स होते हैं, तो इसीलिए वो लोग फिर जैसे हमारे पास कैन फूड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ चीजें लाजमी तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए। डिस्कार्ड कैन्स इफ दे हैव दीज प्रॉब्लम्स। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अब इस पिक्चर में क्या क्या इस कैन के साथ इश्यूज हैं। सिवियर डेंट इन कैन सीम्स, ठीक है ना, कि इसमें बहुत ज्यादा जो है आपको डेंट नजर आ रहा होगा। अब अगर इसमें डेंट है तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किस्म की लीकेज भी मौजूद होगी, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपके किसी भी उसमें जो है लीकेज मौजूद है, तो वो किस चीज को जो है इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके वहां पर जो है उस कैन के अंदर आपके जो है कोई ना कोई पैथोजन या कोई ना कोई ऐसी चीज जो है एंटर हो सकती है जो आपके फूड को जो है डैमेज कर दे, ठीक है। क्रश्ड कैन्स दैट आर नॉट स्टेकेबल। अब हम जैसे किसी भी मॉल में गए, वहां पर हमने देखा कैन रखे हुए, लेकिन वो इस हद तक क्रश है कि वो अपनी जगह स्टेबल नहीं है, वो जो है वो कहते हैं ना कि वो लुढ़कते जा रहे हैं, सही है, तो वो जो है बहुत ज्यादा वो जो एक तरीके से अपनी जगह पर स्टेबल है, तो वो भी अब जो है आपके हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। डीप टेंट्स इन बॉडी ऑफ कैन, ठीक है ना, अब जैसे बहुत ज्यादा उसमें जो है टेंट्स, मिसिंग लेबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आपके पास वो जो कैन है उसमें अगर आपके पास उसकी बेस्ट ऑफ डेट मौजूद नहीं है, उसके आपके पास एक्सपायरी डेट मौजूद नहीं है, तो ये चीज भी जो है आपको फिर वहां पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है कि उस चीज को भी फिर हमें बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। अनरीडेबल लेबल्स, ठीक है, कि आपके वहां पर लेबल मौजूद है, लेकिन आप उसको जो है वहां पर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज भी उसमें जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। स्वेलन और बल्गिंग एंड्स, कि वहां आपके पास जो कोई कैन है, वहां पर एक जगह आपको जो है कोई लम्ब सा हो रहा है, फूला फूला सा इस तरह नजर आ रहा है, मे भी अंदर कोई जो है कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा पार्टिकल हो, कोई ऐसी फंगल चीज मौजूद हो जो हमारे लिए सही ना हो। रस्ट डेट विल नॉट वाइप ऑफ, ठीक है, अक्सर का हम देखा होगा डिफरेंट कैन्स जो होते हैं उसके ऊपर रस्ट भी जो है मौजूद होती है, यानी कि जंग लगा हुआ होता है, तो वो भी जो है आपके लिए जो है बेनिफिशियल नहीं है। होल्स और लीकिंग, ठीक है ना, मैंने बताया भी है। इस तरीके से अब ये देखिए, ये एक जार और बॉटल है, ठीक है, अब इसमें क्या चीज हमें जो है हमें इस चीज को बाय करने से रोक सकती है,
डेंटेड लिड, इसका जो ढक्कन है, इसका जो लिड है वो डेंटेड है, ठीक है ना, वो अंदर से वो जो है डैमेज हुआ हुआ है, ठीक है। अब ये चीज इस बॉटल के साथ है, ठीक है। तो ये चीज जो है इसमें जो है किसी किस्म की लीकेज का, किसी किस्म का जो है उसका जो है बाइस बन सकती है इस तरीके से। अब ये जो एक ड्राई फूड है, ये दिस इज अनलेबल्ड फूड। हमारे पास बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, बहुत सारी हमारे पास ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें इस तरीके के अनलेबल्ड फूड बासानी लोगों को जो है प्रोवाइड हो जाते हैं। और बहुत से लोग हमारे पास ऐसे हैं जो इस तरीके के अनलेबल्ड फूड इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, जो हमें नहीं मालूम होता कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज मौजूद है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज भी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है खतरनाक साबित होती है। अच्छा, लोडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड सेफली, जैसे कि मैंने बताया भी आप लोगों को जो है, प्रिपेयर डिलीवरी व्हीकल्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम कंटेमिनेशन, क्लीन इनसाइड। अब जिस अगर आप में से बहुत से लोग होंगे जो किसी जो है ऐसे आउटलेट से या किसी ऐसी जगह से जो है एफिलिएटेड होंगे जहां से हम जो है किसी भी फूड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जिस व्हीकल में हम जो है किसी फूड को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो व्हीकल आपका जो है क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की जो है कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर व्हीकल्स आर पेस्ट फ्री, ठीक है। उसमें जैसे पेस्ट से मुराद क्या है, उसमें फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, इन ये सब चीजें मौजूद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेवर डिलीवर फूड इन व्हीकल्स यूज्ड टू हॉल गार्बेज, ठीक है, जिसमें आपके पास बहुत ज्यादा गार्बेज मौजूद हो, ऐसा भी आपके पास वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट ब्रिंग पेट्स व्हेन डिलीवरिंग फूड्स, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप फूड डिलीवर करने जा रहे हैं कहीं पर, आपके साथ आपके जो पेट्स भी जो है मौजूद हैं। तो पेट्स में भी जो है बहुत सारे हमारे जो है ऐसे एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट्स मौजूद होते हैं जो आपके फूड्स को जो है कंटेमिनेट कर सकते हैं। कीप आइटम्स दैट कुड कंटेमिनेट फूड सेपरेट फ्रॉम द डिलीवरी, लाइक ऑयल है, एंटी फ्रीज है, वाइपर फ्लूइड है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, ठीक है ना, जो हमारे फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, when loading and transporting food, keep refrigerated food and for 41 Fahrenheit या 5 सेंटीग्रेड और लोअर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे मैंने बताया भी कि जो हमारे पास रेफ्रिजरेटेड फूड्स है उसको हमें जो है उनका जो प्रॉपर टेम्परेचर देना है होता है, वो बहुत लाजमी होता है। इफ पॉसिबल कीप फ्रोजन फूड एट टेम्परेचर्स दैट विल कीप इट फ्रोजन, ठीक है, बट इट इज गुड। अगर आपके पास ये चीज पॉसिबल है तो दिस इज वेल एंड गुड कि जो चीज हमारे पास जो है फ्रोजन फूड आइटम्स होते हैं उसको हमें वही टेम्परेचर प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो जो है हमारे पास एक बिल्कुल बेटर क्वालिटी में हमें हासिल हो। कीप फूड कोल्ड इन अनरेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है बट उसको हमें किसी ना किसी तरीके से कूल रखना लाजमी होता है। ऑलवेज कवर रेफ्रिजरेटेड एंड फ्रोजन फूड्स विद थर्मल ब्लैंकेट्स, ठीक है। ये एक तरीके के जो है थर्मल ब्लैंकेट्स अवेलेबल होते हैं जिससे हम अपने फूड्स को जो है कवर कर सकते हैं, ताकि उनको हमें जो उनका एक एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर है वो प्रोवाइड करें। और प्लेस इट इन कूलर्स विद आइस पैक्स, ठीक है। अगर आपके जो है व्हीकल में आपके स्टोरेज एरिया में अगर आपके पास फ्रिज मौजूद नहीं है तो डिफरेंट टाइप्स के जो है कूलर्स मिलते हैं, इसमें हम आइस पैक्स रख कर भी इन फूड्स को जो है इनका एप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। लो रेफ्रिजरेटेड एंड फ्रोजन फूड सो एयर कैन सर्कुलेट अराउंड इट, ठीक है, ताकि उनके बीच में जो है एयर की मौजूदगी रहे, बहुत ज्यादा जो है वो एकदम वो ना हो जाए। हाउ एंड व्हेन टू क्लीन एंड सैनिटाइज, अच्छा, क्लीन एंड सैनिटाइज में बेसिकली बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें फर्क क्या होता है। क्लीनिंग वर्सेस सैनिटाइजिंग, क्लीनिंग रिमूव्स फूड एंड अदर डर्ट फ्रॉम अ सरफेस, कि अगर हमारे पास अगर जैसे हमने कटिंग बोर्ड पर अपने मीट को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को कट किया, अब उसके बाद उसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट उसकी जो चीजें हैं वो हमने जो है क्लीन कर दी, तो वो हमने उस एरिया को जो हमारी आंखों में से जो हमारे पास विजिबल डर्ट थी उसको हमने क्लीन कर दिया। लेकिन जो हमारे पास वहां उस सरफेस पर डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस हैं जो इनविजिबल है, जो हमें अपने नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे, वो उन चीजों को जो है क्लीन करने का नाम होता है, हमने उस जगह को सैनिटाइज कर दिया या फिर डिसइंफेक्ट कर दिया। तो ये दोनों में जो है डिफरेंस होता है, ठीक है। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग सरफेस, ऑल सरफेसेस मस्ट बी क्लीन एंड रिंस्ड, वॉल्स एंड फ्लोर, स्टोरेज शेल्फ्स है, हमारे गार्बेज कंटेनर्स हैं। अच्छा, जो हमारे पास घरों में भी जो हम लोग जैसे गार्बेज कंटेनर यूज करते हैं वो भी कुछ लोगों के बहुत ज्यादा जो है गंदे हो रहे होते हैं, वो क्लीन नहीं करते हैं,
उसको भी जो है क्लीन करना लाजमी होता है, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे मुख्तलिफ पैथोजेंस की या डिफरेंट पैरासाइट्स की जो है हमारे पास ग्रोथ हो जाती है, जो आपके पूरे किचन को जो है एक तरीके से जो है कंटेमिनेट करने का बायस बन सकते हैं। अच्छा, क्लीनिंग, अच्छा एनी सरफेस टच मस्ट फूड, ये मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, हैंडलिंग गार्बेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। व्हाट्स रॉन्ग विद द वे दिस गार्बेज वाज हैंडल्ड, ठीक है। अब देखें, अब ये गार्बेज जो है प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें क्या है कि अलाउ टू स्टैक अप, रिमूव गार्बेज एज क्विकली एज पॉसिबल। उसको हमें किसी जगह, हम चाहे अपने घर की बात कर रहे हैं, अपनी चाहे किसी रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, किसी होटल की बात कर रहे हैं, वहां पर हम जो है अपने गार्बेज को जो एक जगह स्टैक नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे हमें उसको हो फौरी हमें जो है उसको वहां से हम डिस्कार्ड करके जो उसका जो अब एक आपके पास एलोकेटेड एरिया है वहां पर जाके उसको हम डंप कर दें। बी केयरफुल नॉट टू कंटेमिनेट फूड और सरफेस व्हेन रिमूविंग गार्बेज, ठीक है। जो आपके पास सरफेसेस हैं वो आपके पास उससे जो है कंटेमिनेट ना हो। क्लीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ गार्बेज कंटेनर्स ऑफन, अभी जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास गार्बेज बिन्स होती है उसको हमें इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों से जो है, दोनों साइड से जो क्लीन करना लाजमी होता है। डू नॉट क्लीन गार्बेज कंटेनर्स इन क्लीन रूम्स और फूड स्टोरेज एरियाज, ठीक है। जहाँ पर हम अपना फूड स्टोर कर रहे हैं या हम जहाँ पर फूड अपना जो है प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर आपके पास जो है हमें गार्बेज नहीं क्लीन करना। क्लोज द लिड एंड आउटडोर कंटेनर्स, ऐसे डस्टबिन या कंटेनर इस्तेमाल करें जिनके साथ लिड मौजूद होती है, ताकि आप उसको जो ऊपर से कवर कर सके और उसमें किसी किस्म के जो है पैरासाइट्स वगैरह पे फिर एंटर ना हो, ठीक है। कीप इंडोर कंटेनर्स कवर्ड व्हेन दे आर नॉट इन यूज, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ईमेल एड्रेस भी सेंड, जी शो हो गया है। यार पार्टिसिपेंट्स, आप लोग मैडम सदफ का जो है वो ईमेल एड्रेस भी नोट कर ले। अगर इन फ्यूचर आपको कोई क्यूरी हो तो आप उनसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनका जो फेसबुक का पेज है वो भी आप लाइक करें। मैडम डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे जो है वो लेक्चर्स देती रहती हैं, तो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। हमारे पास्टिक के साथ भी उनका कोलैबोरेशन हमेशा से रहा है, और वो पास्टिक के साथ जो है बहुत सारे इवेंट्स करवा चुकी हैं। उनकी जो लेक्चर्स वीडियोस हैं वो भी उनके फेसबुक के पेज पे मिल जाएंगी या यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएंगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। पास्टिक का फेसबुक का पेज है, वेबसाइट पे आप www.pastic.gov.pk पे भी आप जाकर वहां से भी पास्टिक का फेसबुक का पेज लाइक कर सकते हैं, या जब हम आपको ईमेल करते हैं सर्टिफिकेट्स उसमें भी हमने लिंक दिया होता है, उस पर भी आप क्लिक करके उसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो न्यू अपकमिंग जो भी इवेंट्स हो या वर्कशॉप सेमिनार्स हो तो वो हम आप उससे अपडेट रह सकें। आज के सेशन के हवाले से मैं डॉक्टर सदफ अकबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि डॉक्टर सदफ अकबर ने आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो लेक्चर दिया, फूड एक्सपायरी डेट में के हवाले से उनको बताया, फूड स्टोरेज कैसे होती है वो बताया, फीफो के बारे में एक नया मतलब कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, फूड लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, हैंड सैनिटाइजिंग, ये सारी चीजें जो फूड हाइजीन प्रैक्टिसेस में आती हैं वो मैडम ने हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो होपफुली आज का जो सेमिनार है वो पार्टिसिपेंट्स के लिए नॉलेजेबल होगा, और वो ये नॉलेज जो है वो आप डिफरेंट अपने सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हम आपको वीडियो लिंक भी दे देंगे ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो सके। पास्टिक का मेन गोल भी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, और हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और इंशाल्लाह जो है वो ऐसी और सेमिनार्स वर्कशॉप्स जो हैं वो आपके लिए अरेंज करते रहेंगे। आप लोग अपनी सजेशंस जो है वो ज़रूर हमें मेल किया करें, ताकि जो है वो न्यू जो भी टॉपिक हैं उनके ऊपर भी हम वर्कशॉप सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकें। डॉक्टर सदफ और आप सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज का जो सेमिनार है वो आप लोगों ने सक्सेसफुल किया। आज की सदफ 100 पार्टिसिपेंट्स से भी अबव थे, मतलब बार बार मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप मैडम हमें अलाउ करें। अब 100 लिमिट से ज्यादा तो हम अलाउ कर नहीं सकते थे। आप सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।
कि आज का वर्कशॉप जो है आपने सक्सेसफुल सेमिनार जो है सक्सेसफुल बनाया। आपकी पार्टिसिपेशन हमारे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रही है और होप के पास्टिक और मैडम सदफ का जो एक रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म और चलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।